Students, today we start our second chapter of class 9 maths, that is polynomials. And my dear students, this chapter is one of the important chapter for you, as you will come across questions of polynomial even in higher classes. So before starting this topic, I would like to tell we will learn polynomials in very details. One method is that we start solving exercise so this is the concept video of polynomials. I would like to teach everything about polynomials in this concept video, and for next exercise point of view I will make another video. So this is the concept of polynomial which is important for you. Even if you see this video, you can solve questions of completions as well. So now we start with this. First of all, you have been studied algebraic expression in junior classes. So anybody among you can tell me what is algebraic expression? Algebraic expression. Anybody? Even I am telling you, the answer cannot be even given by a student of class 12th. Sometimes student of class 12th cannot give the definition of algebraic expressions. That's why be with me and see. I can represent algebraic expression, that is AE, and I would first teach you algebraic expression. After that I will jump over to polynomials. Means it is a basic of polynomials. Before that we need to understand two things. First thing is constant, and another thing is variable. Variable means जो vary करता रहे. Variable means keeps on varying, and constant means permanent, one value, doesn't change, one value, or we can say doesn't vary, does not vary. So we can understand by taking suitable example what is constant and what is variable. Let us take the example of month, date of month. 1/4/2020. This is the date of April month. Now if we see second date 1/4/20, next date keeps on. Time comes when there is 29/4/20. After that sometimes it is 30/4/20, and now 1/5/20. So you see in every case this first column has been changing with one day. If we are talking about the only date, I am giving example what we are looking for the variation. If we are talking about the date, we can see this value is always daily it gets changing, but for 30 days in a month of April the month is not changing. After 1 month this has been changed, but this is not changed for next month as well. So if we are talking about the variable and constant, then we can understand in a particular solution, in a particular context, some values are constant, means fixed, and some keeps on changing. So this is the one example of, we can say, one example for understanding variable and constant. So it means अगर particular solution और constant में particular solution in, we can write like this, in problem मतलब question, in problem oblique कोई क्वेश्चन है या सॉल्यूशन है,
उसमें क्या है, इट इज नॉट डजंट, ये चेंज नहीं हो रही है। और ये क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम में और सॉल्यूशन में वेरी हो रही है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार वेरी। सॉल्यूशन मीन्स सिचुएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर। सॉल्यूशन मीन्स पर्टिकुलर सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स कोई सिचुएशन दे रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन मतलब कोई सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये वेरी होती रहेगी और ये वेरी नहीं होगी। नाउ जनरली वी कैन रिप्रेजेंट वेरिएबल बाय एक्स, वाई, जेड एंड कांस्टेंट कैन बी रिटन एज होल नंबर, natural number, whole number, integers, and sometimes we also used to take alphabets that we see later on. So algebraic expression की बात करता हूँ, अभी एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, तो मैंने बताया था मैं उसको अब ए से लिखूंगा। उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मैं उसको दिखा सकता हूँ कोई कांस्टेंट होगा, चलो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। उसके साथ कोई वेरिएबल होगा, उसके साथ क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा, और उसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर क्या होगी, कोई पावर होगी। पावर क्या होगी, वो पावर क्या होगी, दैट इज रैशनल नंबर। पावर कैसे होगी, अब आप रैशनल नंबर पढ़ चुके हो, पावर कैसे होगी, रैशनल नंबर। तो एग्जांपल, कांस्टेंट क्या हो गया 4, वेरिएबल क्या हो गया x, पावर क्या हो गई 2। कांस्टेंट 3/2, वेरिएबल x, रैशनल नंबर 1/2। वेरिएबल कैन बी नेगेटिव एज वेल, -5। वेरिएबल कैन बी अदर देन x, that is y, 3/2. So you can see these are the some examples of algebraic expression. Now if this is algebraic expression in x, algebraic expression in x, this is algebraic expression in x, but this is algebraic expression in y, because algebraic expression किसी में भी हो सकती है, Now one thing more, if we will take example of 100 x की power, is it rational expression? It is algebraic expression? No, it is not algebraic expression. Why? Because जो power है √2 is not rational number. √2 is not rational. So this is not rational expression. This is not algebraic expression. Not algebraic expression. Because जो ये √2 है क्या है, इज नॉट रैशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने पहले बताया था रैशनल नंबर होना चाहिए, ये इर्रेशनल नंबर है, इसके कारण ये एक्सप्रेशन नहीं है। यही क्वेश्चन आ जाएगा कंपटीशन में, व्हेन यू फेस सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू आर रिटन लाइक दिस, which is rational expression, A, B, C and D. The 4 options is given. You can choose which one. So which is not algebraic expression. The question is this, which is not algebraic expression. So option D is correct for that. Now we proceed with the next concept. अगर हम algebraic expression में algebraic expression ऐड करते हैं तब भी हमको क्या algebraic expression ही मिलती है, algebraic expression में ही मिलती है। जब हम algebraic expression में algebraic expression माइनस करते हैं तब भी हमको algebraic expression ही मिलती है। सिमिलरली जब हम algebraic expression में algebraic expression मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको algebraic expression ही मिलती है। सिमिलरली जब हम डिवाइड करते हैं तब भी हमको algebraic expression ही मिलती है। ये एग्जाम्पल विल कीप यू confident while completions. Let us see how
ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने इसमें दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ दी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने इसमें दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ दी। मैंने इसमें दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, माइनस कर दी। मैंने अब क्या किया, 6x² में एक दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दी। हमको क्या मिल रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिल रहा है। ऐसे ही हमने 6x² में एक दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, 5x³ को डिवाइड किया। जो डिवाइड करने से हमें क्या मिला, ये कांस्टेंट आ गया और x की पावर -1। सो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिली हमको, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिली। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी, ये भी हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिली। जब हम माइनस करेंगे तब भी हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब भी हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलती है। एग्जांपल, हमारे पास 3x² है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने इसमें 3 जोड़ दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इसमें 5 माइनस किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इसमें 100 से डिवाइड किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स यू विल गेट लाइक दिस। क्यों, ये डेफिनेशन फॉलो कर रही है, ये डेफिनेशन, ये कांस्टेंट है, सभी में कांस्टेंट जब करेंगे, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है, रेशनल एक्सप्रेशन रहती है। ओके, और सेकेंड थिंग, ये टर्म्स होती हैं। अगर मैं बोलूं एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म। ओके, वी विल सी लेट टर्म्स इन ahead videos. Now, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्या था, पॉलिनोमियल को मैं फिलहाल यहाँ पे p लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, बट जो पावर होती है वो क्या होती है, व्हाट इज पावर होती है होल नंबर। तो यही डिफरेंस है, मतलब कांस्टेंट x² ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं 5/2 x की पावर 3, ये देखो, ये कांस्टेंट भी है और ये x की पावर 3 पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3x की पावर 1/2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल ये नहीं है। ये दोनों थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, पावर इज नॉट होल नंबर। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, सारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। सारी नहीं है, जबकि सारी पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। All polynomials are algebraic expression, while all algebraic expression are not polynomial. Okay, so you can write note here. All algebraic expression are not P, while all P are algebraic expression. P is not exact representation of polynomials.
कैपिटल P इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सो डोंट कंफ्यूज, मैं आगे बताऊंगा वो, ठीक है। ओके, सो वी हैव, सो here we can say definition of polynomial in general, in rough form, in क्या definition लिख सकते हैं, क्या है, polynomial is algebraic expression which has got, या which has got नहीं, थोड़ा लिखते हैं, in which polynomial is algebraic expression in which power of variable क्या है, in which जो power of, ये कॉन्सेप्ट बेटा बड़े बच्चों को नहीं पता होगा, जो बच्चे 12th में हैं उनको नहीं पता होगा, ऐसा नहीं बुक में नहीं था, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। तो पावर ऑफ वेरिएबल है, क्या है, इज होल नंबर, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इन रफ फॉर्म। Polynomial is algebraic expression in which power of variable is whole number. Okay, let us move further. तो हमने देखा 5x की पावर 5 इज एक पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब बात आती है, अगर मैं पॉलिनोमियल में एक दूसरा पॉलिनोमियल जोड़ दूं, पॉलिनोमियल में एक दूसरा पॉलिनोमियल जोड़ दूं, जैसे एक पॉलिनोमियल ये P1 है, ये P2 है, तो हमें एक P मिल गया, वो भी पॉलिनोमियल ही मिलेगा। सो वी कैन, इफ वी ऐड 5x और 5 प्लस 6x 3, ये हमको पॉलिनोमियल ही मिला। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं एक पॉलिनोमियल में दूसरा पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी मुझे पॉलिनोमियल ही मिलेगा। 3x की पावर 8 माइनस 6x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल में दूसरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करूं, तब भी मुझे पॉलिनोमियल ही मिलेगा। लाइक 5x इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 15x क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल मिल गया। लेकिन अगर मैं एक पॉलिनोमियल में दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड करता हूँ, तब हो सकता है मुझे पॉलिनोमियल ना मिले। क्यों? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर, हमने इसको डिवाइड किया किससे, 2x की पावर 3 से। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 6x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3, देन 2 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगी, +2 माइनस 3x की पावर -1, एंड -1 जो पावर है, पावर क्या है, पावर इज नॉट होल नंबर, पावर होल नंबर नहीं आई यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइड करने पे हमको पॉलिनोमियल ना मिले। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात करते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स की टर्म है, उनको हम ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है। तो अगर हम टर्म की बात करेंगे तो इसमें कितनी टर्म है, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें कितनी टर्म है, तो इसमें टोटल टर्म कितनी हो गई, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, टर्म को जब जोड़ते हैं, मतलब ये T1 हो गई, ये T2 हो गई, ये T3 हो गई, टोटल टर्म कितनी हो गई, 3। तो जब हम पॉलिनोमियल टर्म को जोड़ते हैं, मान लो जोड़ते हैं, 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, हमने जोड़ा, तो क्या पॉलिनोमियल हमको
मिल गया, 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल मिल गया जिसमें, ठीक है, ये हमको एक पॉलिनोमियल मिल गया, 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल मिल गया, पॉलीमल ऑफ 4 टर्म्स। तो कैसे क्या करेंगे, तो पॉलीमल, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये हो गया कि अगर हमारे पास एग्जांपल है 6x की पावर 4 माइनस 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9, ये एक पॉलीमर है। तो इसकी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी टर्म अगर निकाली जाएगी, इसकी टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसके सारे साइन को हम लोग पॉजिटिव बना देंगे और नेगेटिव साइन यहाँ ले लेंगे। तो एक टर्म क्या हो गई 6x की पावर 4, एक टर्म क्या हो गई माइनस 3x क्यूब, कॉमा लगा जाएगा, टर्म लिख रहे हैं ना, एक क्या हो गई 2x स्क्वायर, एक क्या हो गई माइनस 9। अब अगर आपको एक टर्म दे रखी है, लेट अस सी, अगर आपको क्या दे रखा है, आपको एक टर्म दे रखी है, क्या कैसे टर्म दे रखी है, माइनस 2x क्यूब 5x माइनस 8। तो आपको अगर 3 टर्म दे रखी है, इससे पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, इससे पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, आपने इसको ऐड कर दिया तो पॉलिनोमियल क्या बन गया हमारा, पॉलिनोमियल ये बन गया, पॉलिनोमियल ये बन गया। तो आपने देखा टर्म कैसे निकाली जाती है, पॉलिनोमियल टर्म निकाली जाती हैं, हम उसके प्लस साइन को लेके अगर जोड़ दें, उसको जोड़ दें तो टर्म बनती है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बता दिया। तो अब हम करेंगे, हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल की टर्म पे हम लोग क्या क्या मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल टर्म पे अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, लोग यहाँ लिखते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल। अगर टर्म कितनी है, टर्म 1 है, टर्म 1 है, तो यहाँ पे टॉपिक डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म। तो अगर टर्म 1 है तो हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल, मोनोमियल। अगर टर्म हमारे पास कितनी है 2 है तो क्या बोल देंगे, बाइनोमियल। ऐसे ही टर्म, अगर टर्म 3 है, 3 टर्म है तो हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और बेटा इन्हीं से हमारी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे 4 वाली भी होती हैं, कई भी होती हैं, लेकिन उनको हम लोग, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर n वाली भी होती हैं, पावर 10 वाली भी होती हैं, लेकिन बेसिकली यही पढ़ी जाती हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, क्या अगर एक टर्म की है तो 4x 5 100x की पावर 8, ये सब मोनोमियल है। देखो एक टर्म है, एक टर्म है। अगर मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ, मैंने 4x में 5 ऐड कर दिया, 100x की पावर 8 में 5 ऐड कर दिया, ये सब बाइनोमियल हो गई। अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूं तो 3 टर्म होंगी, 3 टर्म, मैंने 4x प्लस 5 प्लस ये ऐड कर दिया। तो टर्म मैंने बता दिया, टर्म निकाली कैसे जाती हैं, आई टोल्ड यू, और टर्म कैसे होती हैं यही बता दिया। लेट अस प्रोसीड विद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट अस प्रोसीड विद द डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उससे हम लोग पहले पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट क्या, एक्चुअली कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे मेरे पास एक ये लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों,
कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर। सो अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 5। ऐसे ही एक मैं लंबा सा एग्जांपल ले लूं यहाँ पे 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 4। तो अब यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो। सो देखो क्या बताया मैंने, आप कोफिशिएंट निकालने के लिए अगेन वही चीज बीच में प्लस रखो और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखो और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ एक्स की पावर 0 लगा दो। तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -2 है, यहाँ पे क्या है, -9 है और कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है, 4 है। अच्छा, अब दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं 4 था, 4 को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म को यही बोला जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। ये समझो कि वी आर स्टडिंग अवर चैप्टर इन अ डीप, वी वांट डीप नॉलेज। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट वाला भी हो गया। नाउ लेट अस मूव अहेड। हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। वी सी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया कि 4 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 100 is constant polynomial. Why? Because 4 can be written as x की power 0, 100 can be written as x की power 0, So now see, we can take any example. Let us take -3/2 x की power 0. We take anything. इसकी बात करें, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, 100 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, इसको हम क्या ले सकते हैं, -3/2। सो एनी होल नंबर कैन बी रिटन, नॉट एनी रैशनल नंबर, so we can say any rational number can be taken as constant polynomial. Now moving ahead, you can see, अगर मैं बात करता हूँ जीरो पॉलिनोमियल की, तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 100, ओके। यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 5, यहाँ लिखा हुआ है x की पावर let us take 15, ओके, multiplied by 0 and what, 0 can be written as this, and if 0 is multiplied with this, then we can get 0. So you see, such number is called zero polynomial because 0 can be multiplied with any power of variable, we get zero polynomial. So this is zero polynomial, so 0 can be regarded as zero polynomial. ठीक है, 0 is zero polynomial. Okay, let us proceed with next example. So we can say 0 can be taken as what, zero polynomial. Let us move further. Now we have some based on this knowledge, we should do some questions based on this knowledge.
we have got x plus 1 by x. We have got x plus 3. We have got we have got these numbers. Can we say this is now polynomial, algebraic expression, polynomials. Can we say this is polynomial? Let us see. This is polynomial. Can we say this is polynomial? This is not polynomial. This is polynomial plus this is not polynomial. This is not polynomial because इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1. और -1 क्या है, -1 इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है. तो एक पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल जुड़ेगा तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हमको नहीं मिलेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ. जबकि ये तो रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ी तो ये हो गया. सिमिलरली इसमें क्या हो गया, x की पावर क्या हो गई, x की पावर हो गई हाफ. तो हाफ इज नॉट होल नंबर नहीं है, हाफ होल नंबर नहीं है. तो ये भी क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो पॉलिनोमियल में हमने क्या, दूसरा पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हमको नहीं मिला. भाई ये पॉलिनोमियल था, इसमें हमने जोड़ा कि हाँ ये, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ा तो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया. नाउ दिस अगेन पावर इज 1/3, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है. नाउ लेट अस मूव फर्दर. We will study degree of polynomial. Degree of polynomial. So, degree of polynomial is highest power. We can say highest power of variable in गिवन पॉलिनोमियल. जो हाईएस्ट डिग्री होती है और दैट पॉलिनोमियल इज रिगार्डेड ऑफ दैट डिग्री. एंड जैसे बात कर ले पहले 3x स्क्वायर प्लस 2. तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई यहाँ पे 2. x की पावर 1000 प्लस 1. डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1000 डिग्री हो गई. अगर यहाँ पे ये आ जाए x की पावर 1 प्लस 10 की पावर, या ये लिखा है 100, तो यहाँ पावर क्या हो गई, यहाँ डिग्री हो गई x की 1. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हेयर इज 2. Here degree of this is 1000 और here degree is 1. So let us proceed further. एक बेसिक है कि अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कैसा होता है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल और 3 डिग्री पॉलिनोमियल. 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल. तो क्या है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या हो गया, एक हमारे क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये पूछा भी जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल हो गया x प्लस 2y 100x प्लस 4y. ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. अच्छा 2 डिग्री पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 8 या 9x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 100. नाउ 3 डिग्री पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 2, 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11. नाउ यू कैन सी जिसमें हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, x की 1 है.
y की 1 है, वेरिएबल की मीन्स 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2 डिग्री में हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की, यहाँ पे 2 है, देखा, यहाँ पे भी देखना 2 है, सो क्वाड्रेटिक हो गया। एंड नाउ 3, इसमें क्या है, 3 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो क्या हो गया, क्यूबिक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये भी पता होना आपको चाहिए। ओके, so students, this is a concept video for the linear polynomials. Although one method is that we can directly proceed with exercise, so we can do this. If you don't want to see this video, you will not, but if you go for looking for any competition, you should know this knowledge. And even then, learning is not solution for the mathematics. If you want to solve mathematics, you need not to mug up things, you have to understand all the concept of mathematics. So I have given you all the concept. Based on these concepts, we will solve our first exercise, and we will also give, in that I will give definition. So far I haven't given you definition of polynomial, although I have tried my best to make you understand about polynomial. So stay tuned. I hope you have liked this video. Please share this video to needy students of all schools, of your friends, and in your different section, so that everybody could understand what polynomial is. Stay safe, stay home, and be the part of war against coronavirus. Have a nice day. Thank you for watching video.